A very good afternoon to all of you. I, Sebashrat, Assistant Professor in IIMT College of Engineering, Department of ECE, heartily welcome to you on the occasion of National Technology Day. Today, our guest of speaker is Mr. S.K. Mahajan, ex-scientist of CD Pilani, will give overview on the topic of National Technology Day. He will discuss about the history of National Technology Day and new inventions regarding the national technologies. He will just give overview on the topic of semiconductor technologies and the new policies which is offered by the government of India for the growth of semiconductor technology. Professor Mahajan sir, I heartily welcome to you and please start your conversation with a student of ECE department. Thank you sir. There is fusion, another is fission. And we also developed the technology of neutron bombs that time itself. And fortunately, there are only two countries which have got the technology of neutron bombs. One, of course, is our great India, and second is Israel. And these neutron bombs were used when India went for airstrike at Balakot. In the name of Spice 1000, we got it from Israel that time. So now we have got full-fledged production facility of those bombs. Okay, so just to honor that we have got a technical capability, technological capabilities to go ahead. इसका फॉलोआउट क्या था? हमारे देश पर सैंक्शंस लग गए थे. यूक्रेन, यूएस, many countries of Europe, including Russia that time, हम पूरे सैंक्शन से प्रभावित थे. But fortunately, our granaries, अनाज का भंडारण 3-4 साल तक कंप्लीट था, इसलिए we did not bother for those sanctions. तो हमने पूरी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप की, उसका फ्रूटेशन आज हमें मिल रहा है. बट एक प्रॉब्लम अभी भी रहती है. हम एज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोलर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स एंड ऑल व्हाट नॉट, और frequency modulation and all type of circuitry and systems. But in सब का heart क्या है? Let us focus on to it, and that will be the topic of the day, which I would be discussing to you. The heart of this electronic system and circuitry is the components. As all of you have been taught in your curriculum, there are two types of components, active and passive components. So passive components, resistors, capacitors, etc. And another active components, starting with diode. Whatever even high-tech domain, but without diode, none of the systems can work. Right from your mobile charger. क्या होता है उसके अंदर? एक रेक्टिफायर होता है. That is built using 4 diodes. रेलवे में जो आपको अंदर फैन, ट्यूबलाइट ये सब होते हैं, they all work on DC. बट ड्राइव किस पे होता है? वो AC पर. तो उसके अंदर रेलवे रेक्टिफायर, उसके जो डायोड्स होते हैं, they are 570 amperes and 4.2 kilovolts. That is the capability of the diode. 3 फेज में उसको लगाना होता है. एक रेलवे डब्बे के नीचे, बोगी के नीचे, there are 72 diodes are fitted, जिससे कि आपको बोगी के अंदर कंप्लीट डीसी का सप्लाई देता है. अब आप सोचिए, इंडिया में तो सेमीकंडक्टर का काम बहुत सीमित होता है. यस,
of course, we are leaders in design. डिजाइन के हम वर्ल्ड लीडर्स हैं, कैडेंस है, एसटी माइक्रो है, देयर आर लॉट मेनी मोर, इवन एसएल चंडीगढ़ है, ये सब डिजाइन सेंटर हमारे पास बहुत है. बट एट सिलिकॉन फाउंड्री वी आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हाट एट प्रेजेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर डूइंग, वी इंपोर्ट सिलिकॉन चिप्स and assemble them and package them and we sell it in the name of made in India or make in India. It is not so. Now, some time back, our Honorable Prime Minister Modi has announced Semiconductor Policy 2022, in which 76,000 crore rupees are to be disbursed as PLI, that is production linked incentives. In this scheme, we are going to have 10 design centers, 10 fabrication facilities or fabrication foundries, and 2 display units. One display unit, of course, has been functional at Greater Noida. Samsung plant is making display units. One more is to come. I will not be focusing my talk onto design and the display devices. I would be focusing onto silicon devices only. Now, if we come to silicon devices, we make devices, but we do not produce chips. We import chips. So, अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले 1 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी जो बैकलॉग है 6 महीने से लेकर 1 साल तक का है. आप अपना व्हीकल आज बुक कीजिए, उसके 6 से 8 महीने या साल भर के बाद आपको मिलेगा, डिलीवर होगा. क्यों? कभी सोचा है? It is not because of mechanical or material. It is because of we don't have enough silicon devices. It is a fallout of Corona pandemic. So अब India is going full-fledged onto having 10 semiconductor foundries, in which right from diode to high-end processors and controllers will be manufactured. And each plant will be requiring minimum 30,000 engineers who are having hands-on experience in the domain of semiconductor unit processes. आप लोग पढ़ते हैं, किताबों में बहुत पढ़ लिया, आपने पीएन जंक्शन थ्योरी पढ़ी. इफ आई आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या आप मुझे एक एम्पियर और 100 वोल्ट का डायोड बना के या डिजाइन करके दे सकते हैं? आई एम श्योर वेरी फ्यू वुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर इट. तो इसके लिए भारत सरकार की जो योजना है, दैट आई विल कम लिटिल लेटर. बिफोर दैट I would be talking of what are the basic unit processes for which the this industries coming from foreign countries to our country. अगर आपको ध्यान हो 1980 में यूएसए ने चाइना में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगा दिए, बट उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि 1995 तक चाइना में उनको चाइनीज लोकल मैन पावर हु इज एक्सपर्ट इन सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग अवेलेबल नहीं थी. और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमको ये समस्या ना आए कि हमारे पास लोकल इंडियन इंजीनियर्स उस दिशा में ट्रेंड नहीं है. तो उसके लिए आप लोग पढ़ते होंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ी आपने, प्रोसेसर पढ़े, 8051 पढ़ा, माइक्रो कंट्रोलर, एवरीथिंग ऑल राइट.
You are expert in that. Arduino board पढ़ा, Raspberry Pi पढ़ा, everything you know. But कभी आपने ये सोचा कि ये बनता कैसे? यही सोचने की बात है. तो इसको बनाने के लिए there are unit processes which we are supposed to know कि क्या यूनिट प्रोसेसेस है, जिसका अगर हमको ज्ञान होगा तो हमको कोई भी कंपनी जो फॉक्सकॉन इंडिया में आ रही है, एक कंपनी जिसको कि टाइप हो गया, अप्रूवल हो गया, एक कंपनी तो आ रही है, इट इज फ्रॉम ताइवान. इस तरह से 9 और आने, 9 मोर आर टू कम. बट इंजीनियर्स की बहुत कमी रहेगी क्योंकि आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तो हो जाएंगे, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोग जाते हैं? आप अब तक का अपने कॉलेज का क्या, सब पूरे प्राइवेट कॉलेज के स्पेक्ट्रम को उठा के देख लीजिए. इसी का स्टूडेंट है और काम कहाँ करता है? इन्फोसिस, टीसीएस, सॉफ्टवेयर डोमेन में करता है, आईटी डोमेन में करता है. क्यों नहीं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है? आज के दिन उसको ओपनिंग्स आने वाली है. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द यूनिट प्रोसेसेस. सिलिकॉन वेफर, सबसे पहले सिलिकॉन का रॉ मटेरियल क्या है? सिलिकॉन किससे बनता है? सिलिकॉन बनता है सैंड, सिलिकेट से. सैंड को प्यूरिफाई करके सिलिकेट बनाया, सिलिकेट को रिड्यूस करके मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन बनता है, that is 98% pure. Then it is refined. That process is most expensive. To convert sand to silicon metallurgical grade is not that expensive, but to convert it to electronic grade or semiconductor grade silicon is most expensive. Very few companies are there. Of course, one company has come by Ambani's, that is in Gujarat. They would be tapping the sands of Narmada river. तो उस सैंड से बनाएंगे सिलिकॉन. अब ये जो सिलिकॉन है, सबसे पहले उसकी प्रोसेस होती क्लीनिंग, रिफाइनिंग, कमिंग टू द रियल थिकनेस. वो सारी यूनिट प्रोसेसेस सीख के आप सिलिकॉन वेफर तक आ जाते हैं. अब वेफर आ गया, उसके बाद व्हेन यू ओपन इट, दैट इज इन क्लीन रूम एनवायरनमेंट. क्लीन रूम मीन्स कि इस रूम में 1 माइक्रोन के पार्टिकल 10 से कम होना चाहिए प्रति सीएफटी पर क्यूबिक फीट. 1 माइक्रोन पार्टिकल शुड बी लेस देन 10. दैट इज क्लास 10 क्लीन रूम कंडीशन. आप सोचिए कि ब्रेन सर्जरी का जो ऑपरेशन थिएटर होता है, उससे भी ज्यादा क्लीनलीनेस की जरूरत पड़ती है. So that is first and foremost requirement is clean room conditioning, clean room availability. So that will provide jobs to civil engineers. Next. अब इसके बाद की स्टेज क्या होती है? Initial cleaning, that is oxidation के पहले की cleaning. So this cleaning has to be done inside clean rooms. इसके पहले की जो क्लीनिंग रिफाइनिंग हुई थी, that was in clean, not in clean rooms. अब ये क्लीन रूम में होगी, क्योंकि इसके बाद उसको थर्मल साइक्लिंग देखना है. इसके बाद आती है स्टेज ऑक्सीडेशन, आइसोलेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक चिप दूसरी चिप से आइसोलेट होना चाहिए, नहीं तो मेटेलिक शॉर्ट होने की संभावना रहती है. सो दैट इज नोन एज आइसोलेशन ऑक्सीडेशन. उसके बाद आता है फोटोलिथोग्राफी. देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फोटोलिथोग्राफी. फिर आता है बेस डिफ्यूजन, दैट इज बोरॉन. अब बोरॉन डोपिंग कैसे करेंगे? अब ये डिपेंड करता है डिजाइन पर. हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी है, पावर है, क्या है. अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी है, देन वी गो टू इम्प्लांटेशन टेक्निक. इफ इट इज हाई पावर, देन इट इज डिफ्यूजन टेक्निक, जनरल पर्पस डिफ्यूजन. उसके बाद की जो प्रोसेस है phosphorus diffusion, that is again by 2 methods, either phosphorus oxychloride diffusion or by phosphorus implantation.
then comes contact window opening, then comes metallization. There are three methods of metallization. One is resistive heating, another E-beam, and third is sputtering. So depending on what is the requirement of the component, and accordingly we select which method has to be followed. Then comes back metallization. So that is in sequence. अब जो ड्रॉपिंग प्रोसेस है, अगर मैं हाई एंड प्रोडक्ट में नहीं हूं, if I am going for high voltage rectifier, railway rectifier diode, then I cannot use these conventional methods of doping. उसके लिए यूज करते हैं पेपर डोपेंट. When you work in industry or if you are being trained somewhere, you will be a ready-made engineer for the company. Now the question comes in, how do we get the training? क्योंकि इंडिया में कहाँ पर सेमीकंडक्टर की फाउंड्रीज हैं? Number one, CSR Sri Pilani is the best foundry. That is a research laboratory where I do come from. मैं वहीं से हूँ. I've been a scientist there. तो वहाँ पर अभी मैं 1.5 महीने पहले I visited. I was deputed by PMO to that place for formulating syllabus hands-on training के लिए, जो कि अपकमिंग इंजीनियर्स को मुझे देना है. हम लोग मीन्स नॉट मी, वहाँ के जो ट्रेनर्स देंगे आपको, साइंटिस्ट आपको सिखाएंगे. तो इन ए बैच ऑफ 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम IIMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सब जगह से. बट आपको मैं इतनी फैसिलिटी दिलवा दूंगा, आपको प्रेफरेंस मिल जाए. तो आप सब अगर उस दिशा में ट्रेनिंग लेंगे तो बिलीव इट कि आपको जॉब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, जॉब आपके पीछे आएंगे सेमीकंडक्टर कंपनीज के. एंड इसके बाद अगर आप चाहें यू कैन मूव टू USA एटसेट्रा. आज के दिन दिस सेमीकंडक्टर चिप्स इज ए स्केर्सिटी बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक. लॉकडाउन हो गए, फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया था. और दैट इज, अब आप पूछेंगे कि इंडिया अलोन कैन नॉट डू, क्यों नहीं कर सकते? द प्रॉब्लम इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव. उसमें बहुत पैसा लगता है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़. हु कैन अफोर्ड? इसलिए कोई प्राइवेट प्लेयर भी उसके अंदर पैसा नहीं लगाएगा. अब आप सोचेंगे कि हम एज ए स्टार्टअप इसमें क्या बना सकते हैं. यस, अब इसको हम अच्छे से एट लेंथ डिस्कस कर सकते हैं. इंडिया इज फुल फ्लेज्ड गोइंग इन फॉर सोलरिफिकेशन ऑफ आवर कंट्री. सोलरिफिकेशन के लिए व्हाट इज द फंडामेंटल नीड? द नीड इज सोलर पैनल्स. पैनल से के लिए आवश्यक क्या है? सोलर सेल्स. सोलर सेल किससे बनते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं. से कोई भी स्टूडेंट या इवन फैकल्टी मेंबर wants to go for production of solar cells, I can help them. I will help them because solar cell even today are a imported item. इंडिया में हम उनको असेंबल करके पैनल के रूप में बेचते हैं. सोलर सेल इजीली अगर आपके पास 25 लाख का फंडिंग हो जाए तो मैं आपको 1000 वाट पर डे का प्रोडक्शन दे सकता हूं और 1 वाट पर 4 रुपए की सेविंग होगी. तो इन ए डे यू अर्न हाउ मच? 4000 rupees. In a month, how much you earn? That is minimum 1 lakh. That is apart from dispersing your salary and everything. That is what you have in your pocket. Solar cell. Any student low की पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डालना चाहे, उसको MSME से फंडिंग वगैरह सब मिल सकती है. बट ही हैज टू बी विलिंग. मैं उसको पूरा ट्रेनिंग दूंगा और सिखाऊंगा. सोलर सेल बनाना सबसे आसान है. नाउ सेकंड प्रोडक्ट व्हिच कम्स इन इज
रेजिस्टेंस। कितने लोग हैं जो रेजिस्टेंस बनाना जानता है? इसके लिए कोई क्लीन रूम की जरूरत नहीं है। दैट इज द पैसिव कंपोनेंट। आप कहेंगे 10 पैसे का तो आता है, बट कितने की नीड होती है? वी नीड इन बल्क। तो इसके लिए व्हाट यू नीड इज अ सिंपल स्पटरिंग यूनिट, जिसमें कि नाइक्रोम का टारगेट होता है, उसको स्पटर करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी आई एम गिविंग यू इज दैट ऑफ MFR, मेटल फिल्म रजिस्टर। कैपेसिटर, आज भी इंडिया में कैपेसिटर्स नहीं बनते। We all import them from Taiwan or Singapore. So आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब टेक्नोलॉजी यहीं पर अवेलेबल है, इस कॉलेज में आपको दी जा सकती है। आप आइए, एंड मोस्ट वेलकम टू आवर R&D सेल, इनोवेशन सेल। आई विल हेल्प टू ऑल माय फैकल्टी मेंबर्स, all my upcoming engineers, semiconductor technocrats. Any questions? Feel free to ask. Thank you very much. Hello, Zeba madam. Could you hear me? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. So should I go ahead? हाँ, क्योंकि अब तक मेरे को Go ahead, sir. Go ahead, sir. हाँ, सिग्नल नहीं मिल रहा था, कि लग रहा था कि मैं फालतू बोल रहा हूँ, उधर आवाज नहीं जा रही है। I felt it that. Audible, sir. Audible, sir. Okay. अगर किसी को कोई क्वेश्चन अब तक करना हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, सो दैट आई कैन गो अहेड। और मैं चाहता हूं कि वन साइडेड ना होके इट शुड बी इंटरेक्टिव। आप लोग एज स्टूडेंट्स, फैकल्टी, आप भी इंटरेक्ट करें, आप भी क्वेश्चंस पुट अप करें, सो दैट इट बिकम्स लाइवली। प्लीज, कोई क्वेश्चंस हैं? एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज। Ziba madam? Okay. If there are no questions, I go ahead. Now, अब जो सेमीकंडक्टर आप चिप्स लेंगे, उसके बाद असेंबली भी उसके अंदर दो प्रकार से होती है। वन इज 3 डायमेंशनल, TO92, TO3, ये पैकेज होते हैं। एंड अनदर इज असेंबली, SOT 23, दैट इज सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, जिसको भी यूज करके आज आप आर्डिनो बोर्ड या फिर रास्पबेरी पाई ये सब बनाते हैं। आपको ये सब टेक्नोलॉजी के हम ज्ञान देंगे। If anybody wants to go ahead, another product which is of importance is LED. अभी क्या होता है, हमारे R&D में LED बल्ब का टेक्नोलॉजी वी डेवलप लो कॉस्ट, 100 रुपए के 10 बल्ब की। बट LED चिप्स तो आज भी बाहर से इंपोर्ट किए, चाइना से। तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी CSR सिर्फ पिलानी में। आपको अपना डोमेन लिखना है कि आप किसमें ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, और वो सिखाएंगे। LED का भी उनका कंप्लीट सेटअप है, और सिलिकॉन टेक्नोलॉजी का भी है कंप्लीट सेटअप। दैट इज दे स्टार्ट विथ मेकिंग a transistor. Once you are aware how to make a transistor, means you have gone through all the unit processes with your own hands, so that when it comes to a processor or a controller, उन सबको बनाने में यूनिट प्रोसेसेस वही लगती है। सो मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इनको आप ध्यान में रखिए, और दोज हु वांट टू बी देयर दे कैन कांटेक्ट मी। प्रश्न तो करो मेरे स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? ज़ेबा मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए सर, स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। आप पूछो ना, क्योंकि ये तो मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिले, बेनिफिट मिले। मैं क्यों चाहूंगा कि पड़ोसी कॉलेज को मिले? यस सर।
Even faculty can ask question, no problem. चलिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. अब इसी के अंदर कोई स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे कि उनको डिजाइन में काम करना है, तो उनको वहां पर डिजाइन सेंटर भी है, वहां पर ट्रेनिंग मिलेगी. दिस विल बी फ्रॉम between 3 to 6 months training, and it will be paid training. That certification will be from Government of India, CSR Sri Pilani. उनके पास सन सिस्टम है that is used for chip designing. जैसे आईसी आपको डिजाइन करना है, प्रोसेसर डिजाइन करना है, ये सब उसका प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है. अब आप देखिए, जितने स्टूडेंट्स आज वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ा होगा अब तक, ये उनको पता है कि सब मॉस सर्किटरी होती है, सबका कॉन्फ़िगरेशन हर चिप का वही होता है, गेट सोर्स ड्रेन. बट एक चिप रैम हो जाती है और एक चिप रॉम होती है, एक मेमोरी बन जाती है, एक लॉजिक बन जाता है, बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड आफ्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड. उसके बाद उसका प्रोग्रामिंग होता है. तो प्रोग्राम के लिए आपको डिजाइन की जरूरत होती है, डिजाइन सेंटर पे आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है. तो सेमीकंडक्टर में दो चीजें होती है, वन इज ए फैब्रिकेशन पार्ट एंड अनदर इज ए डिजाइन पार्ट. सो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. नोबडी कैन से कि व्हिच वन इज इंपॉर्टेंट. बहुत सिंपल लॉजिक देता हूं आपको. जो बच्चे अकेले रहते हैं वो खाना बनाते होंगे, सब्जी रोटी बनाते होंगे. रोटी बनाने की रेसिपी अपने मन से कुछ कुछ इजाद करते हैं, गोल बनती है, तिकोनी बनती है, कुछ भी बनती है, बट बन जाती है. सेम थिंग कैनॉट बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टू सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी. उसको प्रॉपरली आपको सीखना पड़ेगा. आप इंडिया में जो सेमीकंडक्टर कंपनी आ रही है, दे आर लुकिंग फॉर रेडीमेड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंजीनियर्स एंड दे वांट फ्रेश इंजीनियर्स. क्योंकि हमारे यहाँ करिकुलम में हम उसको थ्योरी में तो पढ़ाते हैं, बिकॉज दिस सेमीकंडक्टर facilities are too expensive. We cannot afford, any private college cannot afford it. That's why this provision has been made by our honorable Prime Minister for you young students of electronics or even CAS. जो भी students सीखना चाहे, they can be sent. So thank you very much and happy National Technology Day. Any questions? आपको तो कोई question होती ही नहीं, आप तो वैसे ही परम ज्ञानी हो. Thank you very much, madam. Yes, students, anyone has any question, they can ask to sir. Rahul. Yes, Rahul. Yes, Rahul, do you have any question? No, ma'am. No. Okay. Okay. मैडम आप fine. ही पूछो ना कुछ. You have delivered a wonderful lecture. Yes. Yes. Sundaram. Hello. या प्लीज. हाँ पूछिए. सर एलिमेंट्री लेवल पे, मतलब हाई स्कूल या 12th लेवल पे हम लोग कैसे इस पे अप्लाई कर सकते हैं या कुछ भी? कौन से ईयर में हो आप? Which year you are Second year. studying? हाँ? Second year electronics. Okay. Second year. So after your exams, please contact me. I will send your resume to Director CSR Sri Pilani, and they will accept you. Okay. So Yes. right from second year summer break to third year, everybody is welcome, and I wish कि मेरा student prefer किया जाए over others. Okay, fine, sir. Fine, sir. Sir, on behalf of Department of Electronics and Communication Engineering, आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार ली सर, और आपका वैल्यूबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया एंड डिलीवर्ड वंडरफुल लेक्चर सर. थैंक यू वेरी मच सर. मैडम ये स्टूडेंट्स के भले के लिए है. उन्हीं के लिए 2 महीने पहले आई वेंट टू श्री पिलानी, पीएमओ की ओर से डायरेक्टिव आया था कि
and I am heading that committee जहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्रूम किया जा रहा है. Yes, sir. Yes, sir. And thank you, students, all the students. Happy National Technology Day. Thank you. Thank you all. Welcome.